ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿਹਾ ਧਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ ਚੋਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਊਚੀ, ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। 181 ਅਤੇ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਖਾਣਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3-3000 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 18+ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ। 9.5 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਤੋਂ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ 22 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 37 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਮੌਕੇ ਜੁਟੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ। ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈਂਡਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਉਛਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल गौरव, कोरोना वैक्सीन की फर्स्ट डोज भी जो है वो जरनैल सिंह होरां ने लगवा ली सी। पिछले लगभग 10 दिनों तो हस्पताल दे विच दाखिल सीगे और पिछले 3 दिनों तो वेंटीलेटर पे जरनैल सिंह होरी सीगे। और जरनैल सिंह रजौरी गार्डन तो मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ चोन लड़के विधान सभा पहुंचे सीगे, लेकिन उस तो बाद जरनैल सिंह होरां ने पंजाब का रुख किया, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पर भी काम किया। और जदों पार्टी ने कहा जरनैल सिंह होरां नूं कि लंबी जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चोन लड़न की जरूरत है, तो उस वे भी जरनैल सिंह पिछे नहीं हटे। और खास तौर पे एज ए जर्नलिस्ट भी जरनैल सिंह रह चुके हैं, कई सारे अदारे नाल काम कर चुके हैं। और पी चिदंबरम से वापस आना जो आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना के इस काल दे विच दिक्कतां तां बहुत सारियां वधियां ने, और जदों रोजाना अजिहियां खबरां सामने आउंदियां ने ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 20-25 दिन तो बीमार थे और पूरी उन्होंने लड़ाई लड़ी आपके वालों, और एक गुरसिख आदमी और शुद्ध जीवन, साफ तन मन कमाई सब सारे पासों गुरु ते आशा रखने वाले निक्के निक्के बच्चों के बाप पूरे हो गए जी। और बड़ा घाटा पिया इकले परिवार में, इंसानियत तो घाटा पिया, बड़े अच्छे इंसान। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਐਡੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, बिल्कुल कट ना करो जी। बहुत बहुत मंदभागी घटना मतलब रोज वापरी है। मेरे लिए तो पर्सनली मेरे तो बड़े भरा सी जरनैल सिंह, एक सच्चा गुरसिख जिहड़ा गुरु तो मंगदा सी हमेशा। मैं वेख्या वो कभी किसी तो किसी अगे हथ नहीं अड़दे, कहते जो मैंने बख्शेगा गुरु बख्शेगा। तो बहुत बड़ा घाटा जी, और मैंने पर्सनली मेरे दिल में बड़ी ठेस लगी है। बिल्कुल लाजमी तौर पर शुक्रिया समझा साहब, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। ते जो असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हर रोज़ ही सवेर की शुरुआत को जिस तरीके नाल हो रही है पिछले काफ़ी दिनों तो, जिवें जरनैल सिंह का फेसबुक पेज देखा तो उन्होंने 29 अप्रैल को एक पोस्ट अपने फेसबुक पेज के उत्ते लिखी सी। उस दे विच उन्होंने लिखा सी कि होर लखां वांग दास भी कड़े सरीरिक कष्ट दे विच है, कृपा करके फोन ना करो, गल करन दे नाल साह होर औखा हुंदा है, सरबत दे भले दी अरदास करो। ये जरनैल सिंह होना दा फेसबुक दे उत्ते जो मैं इस समय देख रहे लास्ट उन्हां दी एक पोस्ट सी जो उन्हां दे वल्लों पाई गई, ते इस दे विच उन्होंने यही जानकारी दी 29 अप्रैल नूं, यानी करीब करीब 15 दिन पहला दी पूरी पोस्ट है। तो उस दे विच उन्होंने ये साफ किया, हालांकि कोरोना का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, पर उन्होंने जरूर इशारा किया कि जिस तरीके नाल इस समय लखां लोग जूझ रहे हैं कोरोना की वजह के नाल, उस तरीके नाल वो भी सरीरिक कष्ट दे विच ने। बहुत सारिया फोन कॉल्स आउंदियां ने जदों कोई बीमार होवे तो उन्होंने भी अपील करते नजर आए कि मैनू ना करो, साह लैना औखा हुंदा जदों गलबात भी करदा। ते इस विचाले अज उन्हां दे देहांत की खबर सामने आई है, लाजमी तौर पर एक मंदभागा मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होरां दे वल्लों ट्वीट किया गया, उन्होंने दे वल्लों ट्वीट करके दुख का प्रगटावा किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच लिखिया कि साबका विधायक जरनैल सिंह जी की बेवकती मौत तो दुखी हाँ, परमात्मा उन्हों की आत्मा नूं शांति बख्शे, वो समाज के लिए दिते अपने योगदान के लिए हमेशा याद रहणगे। जरनैल सिंह की मौत के उत्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। केजरीवाल दे वल्लों यह ट्वीट किया गया है ते मनभागी खबर सामने आई है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हरियाणा च कोरोना फैलने के लिए अंदोलन जिम्मेवार है, यह हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के अंदोलन कारण पिंडों के कोरोना फैल गया, धरने वाली थान से किसानों का आना जाना लगातार जारी है, इस करके हरियाणा के कई पिंड हॉटस्पॉट बन गए हैं। एक महीने पहला ये मनोहर लाल जिक्र कर रहे हैं हरियाणा के सीएम। उन्होंने कहा कि एक महीने पहला किसान लीडरों को उन्होंने अपील की थी कि कोरोना काल के धरना खत्म कर दिता जाए, महामारी कंट्रोल होने ते तुसी धरना फिर शुरू कर लेंदे। किसानों ने अपील के उत्ते कोई ध्यान नहीं दिता ते उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पै रहा है। यह कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री का। वो कह रहे हैं कि असीं अपील की सी कि तुसी ना करो, धरना प्रदर्शन मुलतवी कर दो थोड़ी समय के लिए, पर किसान आगुआं ने कोई ध्यान नहीं दिता ते हुण हरियाणा के कई पिंड हॉटस्पॉट बन गए। को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले एक महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो,
एक बार धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन वही चीज़ आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है, बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें, जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आएँ। इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जवाहर यादव जुड़ रहे हैं, हरियाणा बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। जवाहर जी, स्वागत है। सीधा सवाल यही है कि किसानों की तरफ आरोप क्यों या उंगली क्यों उठाई जा रही है? लोग जानना चाहते हैं कि देखिए, पंजाब से भी तो गए हैं, पंजाब में केसेस हैं, लेकिन हरियाणा को क्यों लग रहा है? पंजाब सरकार ने तो इसका जिक्र नहीं किया। अगर आप 12 तारीख के समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की स्टेटमेंट है कि पंजाब में के गांव में जो कोरोना फैल रहा है उसमें जो किसान दिल्ली जाकर आंदोलन में बैठे हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब मुझे लगता है आपको अपनी रिसर्च पूरी करनी चाहिए। मैं डेट कोट करके बता रहा हूँ और मैं किसी समाचार पत्र का नाम नहीं लेना चाहता, मैं समाचार पत्र भी कोट करके बता सकता हूँ। ठीक है। इसलिए एक तो आपको इसमें अपनी रिसर्च पूरी करनी चाहिए। दूसरा, चाहे वो मुख्यमंत्री पंजाब के हो चाहे हरियाणा के हो, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनमें तो कह रहे हैं कि जैसे मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट में कुछ सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से, वो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हम टीका तो लगा लेंगे परंतु टेस्ट नहीं कराएंगे। तो वो उनको जागरूक करें कि इनको टेस्ट कराना चाहिए। अगर उनमें कोई कोरोना पॉजिटिव है, वो लगातार इसका फैलाने का काम ना करे। जिसको पता चले कि कोरोना पॉजिटिव है वो आइसोलेशन में चला जाए और जाने अनजाने उससे जो गलती हो रही है वो गलती रुकनी चाहिए। तो इसमें किसानों की भलाई है, इसमें हरियाणा के लोगों की भलाई है। ये आरोप उस तरह का नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि कोरोना में केवल किसान आंदोलन है। आज जो गांव में फैल रहा है, देखिए जो हरियाणा और पंजाब है, दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो इस तरह की पृष्ठभूमि नहीं है कि जहाँ से श्रमिक के रूप में प्रवासी बन के हरियाणा के लोग कहीं काम करने जाए। पंजाब और हरियाणा में लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं, परंतु आज की डेट में इसलिए हाँ ये तो है नहीं ना कि हरियाणा के या पंजाब के लोग वो बिहार में और वहाँ मध्य प्रदेश में उनका कोरोना बढ़ा। ये तो समझ में आ सकता है कि प्रवासी मजदूर यहाँ काम कर रहा था, उसकी कंस्ट्रक्शन की साइट हो गया, वो वापिस राजस्थान लौट गया, मध्य प्रदेश हो गया। परंतु हरियाणा में जो आज आवागमन हो रहा है वो केवल किसानों का हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। केवल फ्रंट पे काम करने वाले लोग उनको बाहर जाने की छूट है और नहीं तो लोग अपने घरों में बैठे। तो केवल आज की डेट में अगर जो मूवमेंट बगैर रोक टोक की हो रही है वो किसानों की हो रही है। तो उसे आग्रह किया गया है, ये संकट है, महामारी है, इसमें अब सावधानी बरतिए। जिससे कोरोना किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? एक किसान अगर वो धरने से उठकर जाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने किसान को ही तो ट्रांसफर कर रहा है। ये गाँव में जा रहा है तो चाहे वो किसान का बच्चा होगा, चाहे वो डायरेक्ट किसान होगा, चाहे वहाँ की महिलाएं होंगी। तो हम तो किसानों को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए उनसे आग्रह कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये जागरूकता अभियान है, जैसे आपका चैनल भी अनेकों विषयों को लेकर जागरूकता अभियान चलाते ही है ना। आपके यहाँ से भी ये मैसेज जाता ही है ना कि सबको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। तो उसी के नाते ये बताया गया है कि आज हम इसके कहीं भी बैरियर ना बने, इसको फैलाने वाले ना बने, जाने या अनजाने में। आज गाँव में आवागमन केवल किसानों का हो रहा है, बाकी सब लोग अपने घर पर बैठे हैं। इसके नाते ये आग्रह किया मुख्यमंत्री ने, उनको करना चाहिए, उनका दायित्व भी। नहीं जवाहर, ये भी जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं अपील हो रही है, ठीक है, लेकिन सीधे शब्दों में ये भी कह दिया गया कि कहीं ना कहीं जो पिछली बार 1 महीने पहले अपील की थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हॉटस्पॉट बन गए। आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन को लेकर पहले कोई डिसीजन लिया जाता, क्योंकि किसान तो ये लगातार कहते हैं कि कोरोना का पूरा जो एक हाइप बनाई गई उसकी वजह ये है कि कोरोना की आड़ में किसानों का आंदोलन खत्म कर दिया जाए। आप अपील का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि जी नहीं, इसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। तो ये किसान क्या साइंटिस्ट है क्या? किसान क्या डॉक्टर है क्या? जो हम मुख्यमंत्री वक्तव्य देंगे वो कहीं ना कहीं जो इस विषय के
जी जी जवाहर जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क है, जवाहर यादव जी ये जिक्र करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से ही ये कोरोना फैला है। लेकिन इस सबके बीच सवाल यह है कि क्या वाकई ही किसानों के आंदोलन की वजह से फैल गया? क्या गांव हॉटस्पॉट इस वजह से बन गए हरियाणा में कि किसानों का आंदोलन चल रहा है? लेकिन इस बीच इंतजार रहेगा कि किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा इसके बारे में क्या कहता है। उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने का ऐलान तो कर दिया था कि हम मास्क के लिए जागरूक भी करेंगे आंदोलन में, चाहे वो सिंगू पर हो या फिर टिकरी पर, और साथ साथ उनकी तरफ से जिक्र यह भी कर दिया गया था कि वैक्सीन अगर कोई लगवाना चाहता है तो वो भी लगवाएंगे। खैर सियासत भी ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ नजर आई है, पर इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ हरियाणा के मुख्यमंत्री ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ नजर आए ਨੇ कि दिक्कत हुई है किसान अंदोलन की वजह ਦੇ ਨਾਲ। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुकना, ब्रेक के बाद वापस आवांगे कुछ और खबरां।